everyone, my name is Aishwarya Gupta. Today I am going to teach solid state, which is an important topic for the class 12th chemistry. So before starting to the chapter, first I will give a brief introduction of the topics which we are going to study in this chapter. First topic is characteristics of solid. Types of crystalline solids means there will be 4 types of crystalline solids: crystal lattice, unit cell, number of atoms in unit cell, close packing and packing efficiency. This is also known as packing fraction. Types of void, there are 2 types of voids like octahedral and tetrahedral. Imperfections in solid, electrical and magnetic properties. Now, before moving towards crystalline and amorphous solid, पहले मैं solids क्या होते हैं ये concept एक बार recall करा देना चाहता हूँ. So solids are those which have definite shape and definite volume. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर वो चीज़ जिसका शेप डेफिनेट है और जिसका वॉल्यूम डेफिनेट है, क्या वो परफेक्ट सॉलिड होगा? तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए सॉलिड्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये क्या होता है? लेट्स से वी हैव अ सॉलिड NaCl. तो अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो NaCl ये फर्दर चेन इंक्रीज कर रही होगी एक प्रॉपर पैटर्न में. Proper pattern means after each Na there will be one Cl and after each Cl there will be one sodium atom. So this pattern will be following up to a long time. So this is known as a long range order. Whereas amorphous, the word amorphous is made up of 2 words, which means A plus morphous. A means we all know that it means no, and morphous is a Greek word which means form. So amorphous solids are having no form, or we can also say they have a very short range order or no order. Crystalline solids have a very sharp melting point, means the value of these crystalline solid will be melted at a particular temperature. For example, let's say a solid, कोई solid है आपका जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा है, तो मीन्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मीन्स इस 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा और कंप्लीटली इसी टेम्परेचर पर ये कंप्लीटली सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में. Whereas in case of amorphous solid, melting point is in range. What does it mean? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी धीरे धीरे ग्रेजुअली मेल्टिंग होती है इनकी. लेट्स से कि कोई सेम सॉलिड है आपका और उसका मेल्टिंग पॉइंट 90 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच मीन्स इस पूरे सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कितने टेम्परेचर रेंज की जरूरत है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज 90 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लीवेज सरफेस इज क्लीन व्हेन कट विथ नाइफ. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक नाइफ से कट करें तो इनकी जो क्लीवेज सरफेस है वो क्लीन होगी, स्मूथ सरफेस होगी. क्यों स्मूथ होगी? क्योंकि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है. अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करें नाइफ के थ्रू तो कैसी होगी क्लीवेज सरफेस? इरेगुलर होगी. एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. क्लीवेज सरफेस एंड there is one more important property which is anisotropic and isotropic. अब बात कर ले आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या होती है. आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ये जो 2 प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, अगर इनकी वैल्यू हर एक डायरेक्शन से मेजर करने पर सेम आती है तो हम बोलते हैं कि इट इज आइसोट्रोपिक. अगर यही वैल्यू हर एक डायरेक्शन से मेजर करने पर डिफरेंट आती है तो हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपी. आई विल एक्सप्लेन दिस इन फर्दर स्लाइड्स व्हाट इज आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी. For example, we can take crystalline solids as quartz and NaCl crystals, and for the example of amorphous we can take glass. So glass is also known as super cooled liquid.
Now, isotropy and anisotropy. There are some physical properties like refractive index and electrical resistance are different when measured along different direction in case of anisotropy, and in case of isotropy, these properties do not vary at large level. देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. लेट्स से ये कोई हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें आपका डॉटेड और सर्किल फॉर्म में आपके एलिमेंट्स हैं. अगर हम हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट इसका मेजरमेंट करें, लेफ्ट टू राइट अगर हम मेजरमेंट करें तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, क्योंकि जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में एलिमेंट्स हैं वो आपके कौन से हैं, ये जो आपके ब्लैक डॉट्स हैं. और अगर हम टॉप टू बॉटम वर्टिकली मेजरमेंट करें तब फिर से कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, क्योंकि ये जो सर्किल है आपका, ठीक है, ब्लैंक सर्किल है. और अगर हम डायगनली मेजरमेंट करें तो ऑल्टरनेट पे आप देखेंगे कि जो हमारे डार्क सर्किल और नॉर्मल सर्किल है तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट आएगी. तो अगर हम इसको डिफरेंट डायरेक्शन से मेज़र करेंगे तो इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी. मीन्स कैसा हुआ सॉलिड, एनाइसोट्रोपिक हुआ. एनाइसोट्रोपिक है तो सॉलिड कैसा, प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपी, तो सॉलिड कैसा हुआ, क्रिस्टलाइन. आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड is observed to have the same values along all the direction. रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर एक डायरेक्शन से सेम है. कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, वोट एट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी. तो देखिए अभी हमने इसको सॉल्व किया कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अभी फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी. जब फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये हर एक डायरेक्शन में सेम वैल्यू है तो सॉलिड कैसा हुआ, एमॉर्फस सॉलिड हुआ. और हमें पता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स क्लीवेज अगर इनको हम नाइफ से कट करें तो कैसी सरफेस देते हैं, रफ. तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इट डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी एंड इट इज एन एमॉर्फस सॉलिड. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड. तो अभी हमने देखा कि ग्लास क्या होता है, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड. सो एमॉर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड्स भी हम इनको बोलते हैं. तो इनके अंदर टेंडेंसी क्या होती है, लिक्विड की तरह इनकी जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो. इसको हम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनके जो विंडोज़ हैं या ग्लास पैन्स हैं वो बॉटम पे काफ़ी थिकर होते हैं जबकि टॉप एज कंपेयर टू टॉप. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लास है वो टेंडेंसी कैसी रखता है, टेंडेंसी रखता है फ्लो करने की. सो फ्लो करने की टेंडेंसी किसके पास होती है, लिक्विड के पास. बट हम ये भी देख चुके हैं कि ग्लास का शेप डेफिनेट है और वॉल्यूम भी डेफिनेट है, विच मीन्स इट इज सॉलिड और स्यूडो सॉलिड. सो दैट्स व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. Now I will classify crystalline solids as we have studied water crystalline solids having a long range order. Now crystalline solids are classified into 4 types which are molecular solid, ionic solid, covalent or network solid and metallic solid. अगर molecular solid की बात करें तो इसके जो constituent particle होते हैं, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं. और मॉलिकुलर सॉलिड्स को भी फर्दर हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक फॉर द नॉन पोलर हीलियम, ऑर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन. ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल हैं, इनके बारे में हमने क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 है, अगर हाइड्रोजन गैस को हम सॉलिडिफाई कर लें तो उसके जो क्रिस्टल मिलेंगे उन क्रिस्टल्स को क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर सॉलिड्स. और वो किसके क्रिस्टल होंगे, H के क्रिस्टल नहीं होंगे, वो आपके क्रिस्टल होंगे H2 मॉलिक्यूल के क्रिस्टल होंगे. सिमिलरली पोलर, फॉर एग्जांपल ऑफ पोलर वी कैन टेक HCl, HBr. हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O, HF हम कई सारे ले सकते हैं. आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे, आयनिक सॉलिड्स में जो आयंस होंगे उनका 3D अरेंजमेंट होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आयंस होंगे. इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा,
इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा, हार्ड और ब्रिटल होंगे नेचर में। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक NaCl। और आयनिक सॉलिड्स की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कि ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जबकि मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। रीज़न क्या होता है? सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं और वो फ्री नहीं होते माइग्रेट करने के लिए। सिंस आयंस आर नॉट फ्री टू माइग्रेट, सो देयर विल नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल करंट। In case of molten state, ions are far away and they are free to migrate. Since they are free to migrate, so there will be ability to conduct electrical current. Metallic solids, they will be formed with the metallic bond. For example, iron, copper, silver, magnesium. There are many examples. Covalent or network solids. Since it is clear from its name that it will have a covalent bond, तो क्या होगा? ये जो लार्ज जाइंट मॉलिक्यूल होंगे लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे आएंगे किसमें? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे हैव अ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट बट मे इवन डिकम्पोज बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई तो होता है, लेकिन जो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट की होती है उससे पहले ही ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये इंसुलेटर्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की ओवरऑल बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो जो मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं वो काफ़ी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे आपकी, मॉल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे। जबकि मेटालिक सॉलिड की बात करें तो ये हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग होंगे, और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें तो ये बैड कंडक्टर होंगे या इंसुलेटर्स होंगे। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो अभी हमने बताया कि सॉलिड स्टेट में क्या होगा? आयंस आर टाइटली बॉन्डेड, सो दे आर नॉट फ्री टू माइग्रेट, whereas in case of molten state the ions are free to migrate. So since ions are free to migrate, so they will be able to conduct electricity. एक और क्वेश्चन है आपका, solid A is very hard and electrical insulator in solid as well as in molten state. कोई सॉलिड ए है वो काफ़ी हार्ड है नेचर में और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, और सॉलिड और मॉल्टन दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। मींस ये आयनिक सॉलिड की पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई इसकी, एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमने किस में पढ़ रखी है? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और ये सॉलिड और मॉल्टन स्टेट दोनों में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स।